உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் 2200 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட பணிகளை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி 20வது தவணையாக 9.7 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளுக்கு 20,500 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான நிதியை விடுவித்தார். அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ विकास पथ पर अग्रसर काशी ने विकास की वो यात्रा देखी है जो पहले सभी के लिए कल्पना मात्र थी। चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் 2200 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட பணிகளில் 20வது தவணையாக 9.7 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளுக்கு 20,500 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான நிதியை விடுவித்தார். இதுகுறித்த முழு விவரங்களை வழங்க தலைமைச் செய்தியாளர் விக்னேஷ் நம்மோடு இணைப்பில் காத்திருக்கிறார். விக்னேஷ், வணக்கம். முழு விவரங்கள். வணக்கம் நவீனா. பிரதமர் மோடி தன்னுடைய சொந்த தொகுதியான வாரணாசியில் சுமார் 2200 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதோடு நிறைவடைந்த திட்டங்களையும் தற்போது தொடங்கி வைத்து வரக்கூடிய காட்சிகளை நேரடியாக பார்க்கிறோம். வாரணாசியில் சாலை இணைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக பிரதமர் பல முக்கிய உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களையும் இன்றைய தினம் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார். அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கக்கூடிய வகையில் சாலையினுடைய அளவை அகலப்படுத்துதல் மற்றும் வலுப்படுத்துதல் பணிகளும் இன்றைய தினம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் பல கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற வழித்தடங்களில் விரிவான சாலை விரிவாக்கம் மற்றும் வலுப்படுத்துவதற்குமான ரயில்வே மேம்பாலங்களுக்கும் பிரதமர் மோடி இன்றைய தினம் அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறார். அதோடு ஸ்மார்ட் விநியோக திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பணிகள் மற்றும் ரூபாய் 880 கோடிக்கும் மேல் மதிப்பிருக்கக்கூடிய மின்சார உட்கட்டமைப்பை நிலத்தடியில் அமைக்கக்கூடிய பணிகளுக்கும் பிரதமர் மோடி இன்றைய தினம் அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறார். சுற்றுலாவுக்கு பெரும் ஊக்கமளிக்கக்கூடிய வகையில் ஆற்றங்கரை கச்சா படித்துறைகளில் மறுசீரமைப்பு, காளிகாதாமில் மேம்பாட்டு பணிகள், சிவ்பூரில் இருக்கக்கூடிய ராக்கிங் தாஸ் குடியாவில் குளம் மற்றும் படித்துறையை அழகுபடுத்துதல் மற்றும் மறுசீரமைப்பு பணிகளையும் பிரதமர் மோடி இன்றைய தினம் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார். மேலும் காஞ்சன்பூரில் ஒரு நகர்ப்புற மியாவாகி வனத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் உதயன் மற்றும் 21 பிற பூங்காக்களை மறுசீரமைப்பு மற்றும் அழகுபடுத்துவதற்குமான அடிக்கலையும் பிரதமர் மோடி இன்றைய தினம் அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறார். மேலும் கலாச்சார ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க பல்வேறு சுத்திகரிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை தொடங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய பிரதமர் மோடி அதோடு 4 மிதக்கும் பூஜை மேடைகளையும் இன்றைய தினம் திறந்து வைக்கிருப்பதாக தகவல் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நவீனா, முழு விவரங்களுக்கு நன்றி விக்னேஷ். काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें जब देखने का अवसर मिल रहा है, दिव्य तस्वीरें, और खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है।
मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। 1000 साल पहले अपनी शिव भक्ति और शैव परंपरा के जरिए राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों के जरिए हम उसे आगे बढ़ाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। और मैं जब अभी गंगईकोंडा चोलापुरम गया तो मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि 1000 साल बाद आपके आशीर्वाद से मैं भी गंगा जल लेकर वहां गया था। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई। गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। एक 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल और आज
किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। 21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, आज यहां भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले काशी में सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। यानी स्पर्धा के द्वारा स्किल डेवलपमेंट, स्वयं प्रयास से स्किल डेवलपमेंट, उसके अनेक प्रयोग आज काशी की भूमि में हो रहे हैं। आने वाले दिनों में काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद रोजगार मेला समेत कई और आयोजन भी होने वाले हैं। मैं यहां सरकार के सभी मुलाजिमों को, सरकार के सभी अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि वे जनभागीदारी से युवा पीढ़ी को जोड़ करके ऐसे अद्भुत कार्यक्रमों की रचना करते हैं और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाते हैं। इस काम में जुड़े हुए सभी अधिकारी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे
किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் 2200 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட பணிகளை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி 20வது தவணை நிதியை விவசாயிகளுக்கு விடுவித்தார். அதன் பிறகு அவர் உரையாற்றிய காட்சிகளை பார்த்தோம்.